as we have discussed in last class, how we can work with DML statements in PL/SQL block. Clear, students? हेलो, यस सर। असाइनमेंट जो दिए थे लास्ट क्लास में बनाए आप लोगों ने स्टूडेंट्स? नो बने सर। नहीं बनाए किसी ने भी? सर बने, समझ में नहीं आया सर। वो समझ नहीं आया है? क्या समझ नहीं आया बेटा, बताओ। सर आपने सर पीपीटी मेल की हुई है। हेलो, हेलो क्या हेलो हाँ जी बोलो। आपने सर जो पीपीटी मेल की हुई है, हाँ, तो सर उसमें सर कर्सर का वो नहीं आ रहा, सीधा सर क्या ट्रिगर आ रहा है उसके उसमें बाद। कर्सर टॉपिक नहीं है? नहीं सर। Okay, okay. I'll mail the cursor topic explicitly. Okay. ओके Today ओके I सर, will mail you cursors. Okay. ठीक है सर। चलिए. यस So सर। as we have already discussed, PL SQL block basically consists of four sections or four block. First one is declare section, that is used to declare variables and cursors. Second one is begin section. Begin section is used to write down executable statements. Third section is exception. Exception section is used for exception handling. And last block is end block. So far we have discussed declare section, we have discussed begin section, as well as we have discussed end section. Today we will be discussing exception section in PL/SQL block. To discuss exception section in PL/SQL block, first of all we must be knowing what are exceptions. As you all already know, as we have already discussed in C++ or Java, exceptions are runtime errors. Basically, there are two types of errors, compile time errors and runtime errors. The errors which are generated at compile time, they are known as compile time errors. They are required to be removed from the program. Otherwise, the program will not be compiled successfully. And if a program has not been compiled successfully, the program cannot be executed. But the errors which are generated at runtime, they are known as runtime errors or exceptions. They cannot be removed from a program because runtime error, it is not compulsory that runtime errors will be generated every time. It depends on the circumstances. Runtime errors may be generated or may not be generated. Therefore, runtime errors or exceptions cannot be removed from a program. They can only be handled. If any exception is generated in a program in a PL/SQL block and the exception has not been handled within the PL/SQL block, then every language has its own exception handler. Therefore, the execution control will be transferred to that exception handler and your program will be terminated at that moment. Therefore, if you want your program must not be terminated because of an exception, then you must provide exception handling in your program. Clear, students? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? हेलो, सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। अभी जो हमने एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस किया, समझ आया आप लोगों को? कट कट के आ रही है आवाज। चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, दो तरह की एरर्स होती हैं, एक होती है कंपाइल टाइम एरर्स और एक होती है रन टाइम एरर्स। कंपाइल टाइम एरर्स वो होती हैं जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने पे आती हैं, उन्हें हमें अपने प्रोग्राम से रिमूव करना पड़ता है। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी कंपाइल टाइम एरर है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होगा, और अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होता है देन वी कैन नॉट रन आवर प्रोग्राम। Second one are known as exceptions. Exceptions are runtime errors. Means the errors which are generated at runtime, they are known as exceptions. Exceptions may be generated or may not be generated. It will depend on that time circumstances. एक्सेप्शन हमारे प्रोग्राम में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, ये डिपेंड करेगा उस समय क्या कंडीशन है। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आती है
और हमने उस एक्सेप्शन को अपने प्रोग्राम में हैंडल नहीं कराया है, तो हर लैंग्वेज का अपना एक्सेप्शन हैंडलर होता है। एक्सेप्शन आने पे हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल उस एक्सेप्शन हैंडलर के पास ट्रांसफर हो जाता है, और वो एक्सेप्शन हैंडलर हमारे प्रोग्राम हमारी एक्सेप्शन को हैंडल करता है, एंड आवर प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटेड एट दैट मोमेंट। हमारा प्रोग्राम उसी समय टर्मिनेट हो जाता है। रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। Therefore, if it appears that there are some chances of generating exceptions in our program, we must provide exception handling in our program. अगर आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ सकती है, तो आपको अपने प्रोग्राम में उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। as you already know, Java and C++ also provides the concept of exception handling. आती है स्टूडेंट, जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है आप लोगों ने? यस सर। जैसा कि हम जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, while we are working with Java to handle the exceptions, we have try and catch, we have try catch and finally, and we have the throws keyword. But in case of PL/SQL, in case of Oracle, exception handling is so simple. Today we will be discussing how we can handle the exceptions. Now, according to PPT, what is exceptions? देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स PPT? यस सर। An exception is an error condition during a program execution. Program execution means run time. Run time पर जो error condition आती है, that is known as an exception. When an error occurs, error का मतलब है यहाँ पे run time error. An exception is raised. जब भी हमारे प्रोग्राम में रन टाइम पर कोई एरर आती है, एक्सेप्शन रेज होगी. That is normal execution stops. और अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट होती है, तो हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट ऑफ योर PL/SQL ब्लॉक, और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल हमारे PL/SQL ब्लॉक के एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट पर चला जाता है। अब अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट आपने अपने PL/SQL ब्लॉक में दिया हुआ है, तो वो एक्सेप्शन आपके PL/SQL ब्लॉक में ही हैंडल हो जाएगी और आपका PL/SQL ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता रहेगा। बट इफ देयर इज नो सच एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट इज अवेलेबल इन योर PL/SQL block, then exception will not be handled by your PL/SQL block and your program will be terminated at that moment. There are following two type of exceptions. First one is predefined or built-in exception. Second one is user-defined exceptions. First of all, we will be discussing predefined exceptions. As the name represents, built-in exceptions provided by PL/SQL block are known as predefined exceptions. जो exceptions पहले से बनी बनाई होती हैं, जो exceptions हमें PL/SQL block provide कराता है, उन exceptions को कहते हैं predefined exceptions. Predefined exceptions are raised implicitly whenever PL/SQL program violates an Oracle rule or exceeds a system dependent limit. Predefined exceptions हमारे प्रोग्राम में अपने आप आ जाती हैं जब भी हमारा प्रोग्राम Oracle के किसी रूल को वायलेट करता है या हमारा प्रोग्राम सिस्टम डिपेंडेंट लिमिट को एक्सीड करता है. फॉर एग्जांपल, सपोज इन अ PL/SQL ब्लॉक we are dividing two numbers, and in case of division, if denominator is 0, this will generate an exception which is known as divide by 0. मान लीजिए आप कोई PL/SQL ब्लॉक का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें आपने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और अगर आपका उसमें जो डिनोमिनेटर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडर है, वो अगर 0 है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी. लेकिन अगर आपका डिवाइडर 0 नहीं है तो एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगी. इसीलिए हमने कहा था एक्सेप्शंस मे बी जनरेटेड और मे नॉट बी जनरेटेड. मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया टू गेट टू नंबर्स. अब जो दो नंबर गेट किए हैं आपने, अगर यूजर ने उसमें दोनों में नंबर डाले हैं, कहीं पर भी 0 नहीं डाला है, तो एक्सेप्शन नहीं आएगी. लेकिन अगर यूजर ने एक नंबर में 0 डाल दिया है तो एक्सेप्शन आ जाएगी. Oracle, every Oracle error has a number, but exceptions must be handled by name. Oracle में हर एरर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर होता है. आप लोगों ने देखा भी होगा, जो आप लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, अगर उस प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो एक नंबर लिखा हुआ आता है और उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ होता है. It means in Oracle every error has a number,
but exceptions cannot be handled by using numbers. To handle the exceptions, we must be knowing exception name. यही इन्होंने यहाँ पे हमें पीपीटी में बताया है. But exceptions must be handled by a name. So PL/SQL block predefines some common Oracle errors as exceptions. So as you are seeing, to handle exceptions, they are basically handled by name. Therefore, first of all, we must be knowing some most frequently used predefined exception names. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं some of the predefined exceptions. Oracle में बहुत सारी predefined exceptions होती हैं. We are discussing only most frequently used predefined exceptions. First one is too many rows. Name से कुछ समझ आ रहा है स्टूडेंट? Yes, sir. हेलो, सुन पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर. जब एक से ज्यादा रोज होंगी. Exactly. Whenever we are working with PL/SQL block, and if we are using select command with into clause, using select command with into clause means we are not working with explicit cursors. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था, अगर हमें ऐसी सेलेक्ट कमांड के साथ यूज करना है जो मल्टीपल रोज रिटर्न करती है, तो हम कर्सर्स यूज करेंगे, एक्सप्लिसिट कर्सर्स यूज करेंगे. बट सपोज we are using a select command which return multiple rows, but we are not using explicit cursors. तो जब हम उस select command को execute कराएंगे, तो हमारे पास एक exception आ जाएगी, जिस exception का name होगा too many rows. Clear students? लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए. This exception is raised whenever select into statement returns more than one row. इसका मतलब है अगर आपने अपने PL/SQL ब्लॉक में select कमांड यूज किया है with into clause और वो select कमांड अगर एक से ज्यादा रो रिटर्न करती है, then this exception will be generated too many rows. अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को इसको बना के. Second one is no data found. सेम है ये भी. इस केस में अगर आपने select कमांड यूज की है और वो select कमांड कोई भी रो रिटर्न नहीं करती है, then your PL/SQL block will generate an exception by the name no data found. Next one is zero divide. As you all know, whenever we try to divide a number by zero, this exception will be generated. Another one is cursor already open. As the name represent, this exception will be generated whenever we are trying to open an already opened cursor. अगर कोई कर्सर पहले से ओपन है और आप उसे दोबारा से ओपन कराने के लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं ओपन कर्सर नेम, then this exception cursor already open will be generated. Next one is invalid cursor. This exception is generated whenever we are trying an illegal cursor operation. अगर हम कर्सर के साथ कोई भी illegal operation perform करते हैं, then the exception invalid cursor will be generated. What do you mean by illegal operation of a cursor? Such as trying to close an unopened cursor. आपका कोई कर्सर ओपन नहीं है और आप उस कर्सर को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, then this will generate the exception by the name invalid cursors. These are the some most frequently used predefined exceptions. Clear students? यस सर. चेक करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं. Suppose we are developing a program to get an employee number from the user, display name and salary of that employee. बनाया था इस तरह का प्रोग्राम स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में. Yes. दोबारा से बनाते हैं. ed disp.sql. Here we are required to get a number from the user and we are required to display employee name and salary of that employee. तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एम्प्लॉय नंबर के लिए emp.empno percentile type. Then we are required to display name. हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया emp.ename percentile type. Then we are also required to display salary. Then we will declare a variable of emp.sal percentile type. Now begin block. Now we are required to get employee number en colon equal to ampersand empno. Now we will say
Now we are required to retrieve the data from the table. Therefore, we will execute select command. Select ename comma cell into nm comma sl from emp where emp no equal to en. Now we will display dbms underscore output dot put underscore line employee name then सर आउटपुट की स्पेलिंग गलत है। okay employee salary dbms under okay clear students now and Yes, sir. slash सेव करते हैं एग्जिट होते हैं now we will run the program at the rate this it's asking for enter value for employee number. Suppose we write down 7439. तो आप देख रहे हैं this employee number does not exist. Therefore, this program has been generated an error by the name no data found. देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। क्लियर। अब हम देख लेते हैं हमारी टेबल में कौन कौन से एम्प्लॉइज एग्जिस्ट करते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। आउटपुट सही नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। सेट लाइन साइज 120, सेट पेज साइज 80। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। हमारे पास ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं। अब हम दोबारा से रन कराते हैं प्रोग्राम को। @टेस्ट हमने डाला एम्प्लॉय नंबर 7788। तो इसने 77 एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन 7788 एम्प्लॉय नेम इज स्कॉट एंड हिज सैलरी इज 3000। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया एम्प्लॉय नेम इज स्कॉट एंड एम्प्लॉय सैलरी इज 3000। As you are seeing, your PL SQL block is working properly. No exception has been generated. Clear, students? Yes, sir. अब सेम प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं और अब हम ऐसा एम्प्लॉय नंबर डालते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है। Then what will happen? Exception. बताइए स्टूडेंट्स, what will happen? सर एक्सेप्शन आ एरर जाएगी। जनरेट कर देगा वो नो डाटा फाउंड के। कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी? नो डेटा फाउंड। नो डेटा फाउंड। क्या हमने उस एक्सेप्शन को अपने प्रोग्राम में हैंडल कराया है? नो सर। नहीं कराया है। नो तो हमारा सर। प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा और PL SQL का जो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है दैट विल हैंडल आवर एक्सेप्शन एंड दैट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन। एज यू आर सीइंग, आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है डिक्लेयर ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गई है। एरर एट लाइन 1 क्या एक्सेप्शन आई है? नो डेटा फाउंड। और आप देख रहे हैं उस एक्सेप्शन का कोड आ रहा है, उस एक्सेप्शन का नंबर आ रहा है ओरा 01403। अभी हमने डिस्कस किया था इन ओरेकल एवरी एरर हैज अ नंबर। तो इस एक्सेप्शन का नंबर है ओरा 01403 और इस एक्सेप्शन का नेम है नो डेटा फाउंड। जब यूजर को ये आउटपुट मिलेगा तो यूजर को समझ नहीं आएगा क्या हुआ, बिकॉज यूजर कंप्यूटर लिटरेट नहीं होगा और यूजर को लगेगा कि ये प्रोग्राम गलत बना हुआ है, इस प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है, ये प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा है। क्लियर? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर वो एम्प्लॉय नंबर टेबल में नहीं मिलता है तो ये हमें मैसेज आउटपुट डिस्प्ले करा दे इनवैलिड एम्प्लॉय नंबर, या इस तरह से कोई मैसेज डिस्प्ले करा दे देयर इज नो सच एम्प्लॉय। इस तरह के कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क नहीं करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? We have to handle the exception. ऐसा करने के लिए हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा।
तो अब हम वही सीखेंगे, हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन PL/SQL ब्लॉक। PL/SQL ब्लॉक में एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं? Since predefined exceptions are built in, they are generated implicitly. Therefore, to work with predefined exceptions, we are just required to handle the exception. जैसा कि आप जानते हैं, predefined exceptions पहले से बनी बनाई होती हैं। predefined exceptions हमारे प्रोग्राम में अपने आप आ जाती हैं, हमें उन्हें लाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। We are just required to handle the exception. हमें एक्सेप्शन को केवल क्या करना है? हैंडल कराना है। कैसे हैंडल कराएंगे? इन PL/SQL ब्लॉक, टू हैंडल द एक्सेप्शन वी हैव टू वर्क विद एक्सेप्शन सेक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, PL/SQL ब्लॉक में 4 सेक्शन होते हैं, डिक्लेयर सेक्शन, बिगिन सेक्शन, एक्सेप्शन सेक्शन एंड एंड सेक्शन। इन 4 सेक्शंस में से ओनली 2 सेक्शंस आर मैंडेटरी, बिगिन एंड एंड। Another 2, declare and exception, are optional. If you are not required to work with any variable in a PL/SQL block, you will not be using declare section. But if you are required to declare variables in a PL/SQL block, then you have to work with declare section, because variables can only be declared in declare section. In the same manner, if you are not providing exception handling in your PL/SQL block, then exception section is not required. But if you want to handle the exceptions in PL/SQL block, then you have to work with exception section. तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करा रहे हैं, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कराने के लिए जो हम कोडिंग करेंगे वो एक्सेप्शन सेक्शन में करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए बताया गया है यहाँ पे, इफ एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज रेज्ड, कंट्रोल इज पास्ड टू द एक्सेप्शन सेक्शन ऑफ PL/SQL block. If the exception is not handled there, or if there is no exception section at all, then the PL/SQL block terminates with an unhandled exception. अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन सेक्शन नहीं है, इसका मतलब है आपने अपने प्रोग्राम में PL/SQL ब्लॉक में एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कराया है। और अगर आपने अपने PL/SQL ब्लॉक में एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कराया है और अगर इसमें एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है, तो आपका PL/SQL ब्लॉक वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका PL/SQL ब्लॉक बीच में टर्मिनेट ना हो, then you must provide exception handling in your PL/SQL block. To provide exception handling in your PL/SQL block, you have to work with exception section. सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन देंगे, फिर बिगिन सेक्शन देंगे, जहां बिगिन सेक्शन खत्म होता है उसके बाद देंगे आप एक्सेप्शन सेक्शन। क्या लिखेंगे एक्सेप्शन सेक्शन में? एक्सेप्शन सेक्शन में लिखेंगे when is the keyword, then exception name, जिस एक्सेप्शन को आप हैंडल करना चाहते हैं। अभी हमने बहुत सारे एक्सेप्शन नेम पढ़े थे, जैसे अगर आपको टू मैनी रोज एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो एक्सेप्शन नेम में आप लिखेंगे टू मैनी रोज, देन उसके बाद स्टेटमेंट का मतलब है हाउ टू हैंडल दैट एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन की हैंडलिंग के लिए आप क्या कराना चाहते हैं। अगर आपको एक ही एक्सेप्शन हैंडल करनी है तो आप एक ही वैन देंगे, बट इफ यू वांट टू हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शंस, यू कैन गिव मल्टीपल वैन, जैसा कि आप सिंटैक्स में देख रहे हैं। When exception name 1, then statements you want to execute. When exception name 2, then statements you want to execute. ... Dot means any number of when can be given. Suppose you have given only one when, and with that when you have handled the exception no data found. केवल आपने अपने एक्सेप्शन ब्लॉक में एक ही वैन दिया है और उस वैन में आपने जिस एक्सेप्शन को हैंडल कराया है उस एक्सेप्शन का नाम है नो डेटा फाउंड। अब आपने अपने PL/SQL ब्लॉक को रन कराया और आपके PL/SQL ब्लॉक में मान लीजिए नो डेटा फाउंड वाली एक्सेप्शन आ गई, देन दैट एक्सेप्शन विल बी हैंडल्ड विद इन योर PL/SQL ब्लॉक। लेकिन अगर आपके PL/SQL ब्लॉक में नो डेटा फाउंड की जगह कोई और एक्सेप्शन आती है तो उसको आपने भी अपने प्रोग्राम में हैंडल नहीं कराया है, देयरफॉर those exceptions will not be handled and your program will be terminated. If you want to handle all kind of exceptions, then at last you can give when others then. It means when others then से ऊपर आपने जितने भी when लगाए हैं उनमें आपने जिन जिन exceptions के नेम दिए हैं, अगर वो एक्सेप्शन जनरेट होती हैं तो वो उन वाले वैन से हैंडल हो जाएंगी। लेकिन अगर उनके अलावा कोई भी और एक्सेप्शन हैंडल जनरेट होती है, देन इट विल बी हैंडल्ड विद द हेल्प ऑफ व्हेन अदर्स देन। जैसे इफ के साथ एल्स होता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है व्हेन अदर्स देन। बताइए स्टूडेंट्स, क्लियर?
यस सर। यस सर। चलिए, अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम में आपने देखा था, अगर हम कोई ऐसा एम्प्लॉय नंबर डालते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, तो हम उस एक्सेप्शन को Yes, अपने sir. प्रोग्राम में हैंडल करा लेते हैं। वापस चलते हैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट सर पे। जैसे हमारी एक्सेप्शन एक से ज्यादा रह जाती है, हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है। व्हेन अदर्स देम सभी एक्सेप्शन को कर लेगा या किसी सभी एक को के लिए सभी use को होगा? सभी को कर लेगा। सभी को। हाँ जी। ओके सर। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम आपने बनाया था, प्रोग्राम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर, नोटपैड दिख रहा है। प्रोग्राम देख पा रहे हैं? यस सर। अभी Yes, हमने sir. प्रोग्राम बनाया था टू गेट एन एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम द यूजर, डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। दिस प्रोग्राम इज वर्किंग प्रॉपर्ली और दिस में जनरेट एन एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा सर था। एक्सेप्शन generate an आई थी, नो exception? डेटा फाउंड था। इसमें Yes, sir. Yes, जनरेट विच एक्सेप्शन? नो डेटा फाउंड। नो डेटा फाउंड। क्या ये Yes, sir. प्रोग्राम टू मैनी रोज वाली एक्सेप्शन भी जनरेट कर सकता है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। स्टूडेंट्स सोच के बताइएगा, क्या ये प्रोग्राम टू मैनी रोज वाली एक्सेप्शन भी जनरेट कर सकता है? यस सर। अच्छा, ये बताइए टू मैनी रोज वाली एक्सेप्शन कब जनरेट होगी? जब सर हम एक एम्प्लॉय से ज्यादा एक एम्प्लॉय साथ कराता है उसमें वो कराना चालू जब वो हमारी करेंगे। सेलेक्ट कमांड मोर देन वन रोज रिटर्न करेगी। यस सर। तो ये बताइए, हमारी ईएमपी टेबल में एक एम्प्लॉय नंबर के लिए कितने रिकॉर्ड हैं? एक ही है। सर एक ही है। एक ही है, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर को हमने क्या बनाया हुआ है? हाँ सर। सर वो बनाया हुआ है प्राइमरी की। और अगर हमने उसे प्राइमरी की बनाया हुआ है तो एक एम्प्लॉय नंबर के लिए टेबल में कितने रिकॉर्ड होंगे? सर एक ही होगा। एक। तो क्या कभी ये एक कमांड ही एक से होगा। ज्यादा रो रिटर्न कर सकती है? नो सर। क्लियर? तो दिस Yes, program, sir. this PL/SQL block may generate only no data found exception. This PL/SQL Okay, block sir. cannot generate too many rows exception. बताइए स्टूडेंट्स, ये समझ आया ओके कि सर। नहीं? क्लियर यस स्टूडेंट? सर। तो हमें केवल Yes, इस sir. प्रोग्राम में कौन सी एक्सेप्शन हैंडल करानी है? नो डेटा फाउंड। नो डेटा नो फाउंड। डेटा फाउंड। कैसे हैंडल कराएंगे? देखिए, एक्सेप्शन को हैंडल कराने के लिए जहां बिगिन ब्लॉक खत्म होता है वहां पर जाएंगे, एक्सेप्शन ब्लॉक लिखेंगे। एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर हम देंगे वैन, और जिस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं, हम हैंडल करना चाहते हैं नो डेटा फाउंड एक्सेप्शन को, तो हमने लिखा वैन नो डेटा फाउंड देन। अब इसकी हैंडलिंग में आप क्या कराना चाहते हैं? इसकी हैंडलिंग में हम प्रिंट कराना चाहते हैं इनवैलिड एम्प्लॉय नंबर। तो हमने प्रिंट करा लिया डीबीएमएस इनवैलिड एम्प्लॉय नंबर। क्लियर? और किसी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना है, इसलिए इसको सेव करेंगे, यहां से एग्जिट हो जाएंगे। वापस एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, प्रोग्राम रन कराते हैं। हमने डाला 7788 जो एम्प्लॉय नंबर हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें उनका नेम स्कॉट एंड सैलरी 3000 डिस्प्ले करा दिया। दोबारा से रन कराते हैं इस प्रोग्राम को। हमने डाला ऐसा एम्प्लॉय नंबर जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। देन आप देख रहे हैं नो एरर हैज बीन जनरेटेड एंड इट इज शोइंग एन आउटपुट एम्प्लॉय नंबर। ओके, गलत हो गया, हमने मैसेज गलत प्रिंट करा लिया। यस सर। मैं चेंज कर देता यस हूँ। सर। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखा था बस आपने। इनवैलिड लिखना भूल गए हम, ठीक है? कोई बात नहीं। यस सर, इनवैलिड नहीं लिखा था। चेंज कर देता हूं मैं, इनवैलिड एम्प्लॉय नंबर। अब देखिएगा @this हमने गलत एम्प्लॉय नंबर डाला, तो आप देख रहे हैं मैसेज आ गया इनवैलिड एम्प्लॉय नंबर, प्रोग्राम हैज नॉट बीन टर्मिनेटेड इन बिटवीन, PL/SQL block has been executed successfully, no error has been displayed. Clear Yes, sir. students?
Yes, sir. In this Yes, way, sir. we can provide exception handling. Clear? Now, we will Yes, be sir. discussing another example of predefined exception. Suppose we are required to get department number from the user and we are required to display name and salary of all the employees working in that department. Clear, students? Yes, sir. Yes. हमें डिपार्टमेंट नंबर इनपुट कराना है और उन सभी एम्प्लॉय की नेम और सैलरी डिस्प्ले करानी है जो उस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं. तो हमने कहा ईडी डिस्प डीपीटी डॉट एसक्यूएल डिक्लेयर कर लेते हैं. डिक्लेयर डिपार्टमेंट नंबर इनपुट कराना है ईएमपी डॉट डीपीटीएनओ परसेंटाइल टाइप. देन नेम डिस्प्ले कराना है, सैलरी डिस्प्ले कराना है. नेम के लिए वेरिएबल ले लिया हमने एनएम, सैलरी के लिए वेरिएबल ले लिया एसएल. नेम विल बी ऑफ ई नेम टाइप एंड सैलरी विल बी ऑफ सेल टाइप. नाउ बिगिन. नाउ dn colon equal to ampersand dptno. Then select ename सर comma बिगिन की सर. begin की स्पेलिंग गलत हो गई है. Select ename comma cell into nm comma sl from emp where dptno equal to dn. dbms underscore output dot put underscore line employee name nm employee salary clear students. Yes, sir. सर. अब बताइए दिस प्रोग्राम will work properly or this may generate an exception. सर एक्सेप्शन जनरेट होगा इसमें तो. इसमें generate exception. Yes, sir. What exceptions can be generated within this PLSQL block? Sir, too many rows. Too many rows or any other kind of exception can also be generated. No data found. No data found. अगर हमने ऐसा डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया जो हमारी टेबल में है ही नहीं, then this will generate no data found exception. अगर हमने ऐसा डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया जिस डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉइज काम करते हैं, then this will generate too many rows exception. अगर हमने ऐसा डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया जिसमें केवल एक ही एम्प्लॉय काम करते हैं, then this program will work properly. Clear students? Yes, sir. तो हैंडल करा लेते हैं. सर Means this program may generate two type of exceptions. Therefore, we must provide exception handling within this PLSQL block. Therefore, we will be working with exception section. Within exception section, we have to work with when clause. When कौन-कौन सी exception handle करनी है हमें? सबसे पहले हमें handle करनी है no data found. Then इसमें हम print करा लेते हैं invalid department number. ये एक्सेप्शन तब आएगी जब यूजर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नंबर डालता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करता. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट. Yes, sir. व्हेन too many rows यहाँ पे आप जो भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कहा more than one employees are working in this department.
Clear students? यस Now सर। end slash सेव करेंगे, एग्जिट करेंगे। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं @dist हमने ऐसा डिपार्टमेंट नंबर डाला जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं नो एरर हैज बीन जनरेटेड, इट इज शोइंग द आउटपुट इनवैलिड डिपार्टमेंट नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराते हैं और ऐसा डिपार्टमेंट नंबर डालते हैं जिसमें मोर देन 1 एम्प्लॉइज आर वर्किंग। तो देखिए मैसेज आ गया, मोर देन 1 एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। In this Yes, way, we can sir. provide exception handling in our PL SQL block. Clear, students? यस सर। This was Sir. all about predefined exceptions. ये हमारा predefined exceptions के बारे में था। Clear? Now, as we Yes, have sir. already discussed, there are two types of exceptions. First one was predefined exceptions. Second one is user-defined exceptions. Now we will be discussing user-defined exceptions. As the name represents, user-defined exceptions are the exceptions which are created by the user, which are generated by the user, and which are handled by the user. Predefined exceptions के केस में exceptions पहले से बनी बनाई होती हैं, exception हमारे प्रोग्राम में अपने आप आ जाती है, हमें केवल exception को हैंडल करना होता है। लेकिन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के केस में हमें पहले एक्सेप्शन बनानी पड़ेगी, फिर हमें उस एक्सेप्शन को अपने प्रोग्राम में लाना पड़ेगा, फिर हमें उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, क्या हम ऐसा चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए? नहीं सर। Therefore, generally, user defined exceptions are not required. जनरली हमें यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बट we must be knowing how to work with user defined exceptions because examination point of view and placement of point of view user defined exceptions are important. प्रोग्राम एग्जाम में यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन का क्वेश्चन आ जाता है, प्लेसमेंट ड्राइव्स में यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के बारे में जरूर पूछा जाता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। देखिए एक्सेप्शंस मे बी यूजफुल आल्सो, एक्सेप्शन यूजफुल भी हो सकती है। Therefore, if you want to define your own exception, you can define such exceptions are known as user defined exceptions.